Hello, my dear students of class 9th. So, in the previous lecture, we had discussed about potential difference, resistance, Ohm's law, and today we will be starting with the factors affecting resistance of a conductor. I hope you have watched the previous lecture, that is lecture number 5. Today is lecture number 6 of this ongoing series on current electricity for class 9th. So we have understood what do we mean by resistance of a conductor. Resistance means we have just discussed in the previous lecture that it is the obstruction offered to the flow of current, to the flow of current, isn't it? So ये जो obstruction है, रुकावट है current को, ये कौन ऑफर करता है और इसका क्या कारण है, that we are going to study. The first factor is the material of the wire. Okay, see, different materials have different concentration of electrons. Copper में electrons का concentration कुछ अलग, aluminium में अलग, zinc में अलग, iron में अलग. So different materials have different resistance. तो क्या लिखेंगे? In different materials, the concentration of electrons and the arrangement of atoms are different. Therefore, resistance of the wires of same length, same area of cross section, but of different materials differ depending on their material. जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जो बुरे कंडक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, उनमें बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है. ओके, ये जो पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन आगे के जो पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. पॉइंट नंबर 2 एंड 3 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेंथ ऑफ वायर. ओके, रेजिस्टेंस उस तार का ज्यादा होगा जिसका लंबा, जो ज्यादा लंबा होगा. मान लो कि तुम्हारे पास कॉपर है एंड तुम्हारे पास दूसरा वायर भी कॉपर है, बट वन ऑफ द कॉपर वायर्स इज लॉन्गर. यू सी, कॉपर वायर ए इज ऑफ शॉर्टर लेंथ, कॉपर वायर बी इज ऑफ लॉन्गर लेंथ, एंड से बोथ ऑफ द वायर्स आर ऑफ सेम थिकनेस एज वेल. तो दो कॉपर वायर है, यानी मटेरियल भी सेम है, थिकनेस भी सेम है, दोनों सेम थिकनेस का है, बट दोनों का लेंथ अलग है. तो जिसका ज्यादा लेंथ है वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है. ओके, सो इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन, that a long wire offers more resistance than a short wire. In other words, resistance of a wire is directly proportional to the length of the wire. I hope you will not forget this point, that the length of the wire is directly proportional, the resistance is directly proportional to the length of the wire. Okay, next comes area of cross section of the wire. Okay, by the way, what do you mean by area of cross section of the wire? If you have a wire like this, okay, the area of this circle, okay, this circle is known as the cross section, और इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. तो ऑब्वियसली पतला तार का कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, मोटा तार का, ये सर्कल ज्यादा एरिया है ना, तो मोटा तार का ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा. तो इफ दिस इज A1, दिस इज A2, सो A2 इज ऑब्वियसली मोर देन A1, दिस इज वेरी वेरी क्लियर. तो जितना मोटा तार है, यानी जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा उतना रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. यस, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इनवर्सली, देखो ए नीचे है तो आर ऊपर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अनलाइक लेंथ, लेंथ के साथ हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. And the last point, last factor, the temperature of the wire. जितना गर्म होगा उतना ज्यादा resistance, जितना गर्म होगा उतना ज्यादा resistance. So let's read. The resistance of a wire increases with the increase in its temperature. ठीक है? So this is thing. What is the reason behind this? If the temperature of the wire increases, when जब से हम गर्म करते हैं, the ions in it vibrate more violently. As a result, the number of collisions increases, and the resistance of the wire increases. Simple है, गर्म हो जाएगा तार तो resistance increase हो जाएगा, यानी current decrease हो जाएगा. Okay, now I have selected some important numericals which come too often in your exams. So let's do those numericals. What amount of work is needed in moving 2 coulomb charge through a potential difference of 8 volt? So when you have to solve these numericals, you should always write given. क्या क्या गिवन है? सो गिवन है चार्ज, चार्ज का सिंबल Q होता है. कितना चार्ज है? 2 कूलम.
and potential difference is 8 volt. That means V stands for potential difference, that is 8 volt. हमें निकालना है W. Do you remember I have told you about a formula V is equal to W upon Q. कब बताया था? पिछले वीडियो में बताया था. देखो मैं पिछले क्लास का वीडियो को ये कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ. देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ये इसी फॉर्मूला में मैंने यहां पर बताया था. V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जिससे हमारा आ गया W इज इक्वल टू वी क्यू. तुम्हें याद होगा ना, देखो मैंने ना पिछले क्लास में ही ये सारी चीजें कराया था. इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस रिकॉर्डिंग, तुम्हें देखना बहुत जरूरी है. नीचे लिंक है प्लेलिस्ट का, यू मस्ट डेफिनेटली वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल नाइसली. तो हमें W निकालना है, तो W इज वी क्यू. V हमें पता है 8 एंड Q हमें पता है 2. तो 8 टू 16 जूल्स आ गया. वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, जूल लिख देंगे. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सेल इज कनेक्टेड टू अ बल्ब व्हिच डेवलप्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट अक्रॉस इट. ओके, देयर इज अ बल्ब और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उसको जब हमने किस सेल से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट. देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं पहले गिवन इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूं. द करंट इन द सर्किट इज मेजर्ड टू बी 2 एम्पियर. तो I stands for current. Don't forget the symbols, huh? I stands for current. Current है 2 एम्पियर. Find the resistance offered by the filament of the bulb to the flow of current. हमें R निकालना है. तो कौन सा फॉर्मूला? V equals to IR. ओम्स लॉ, जिसको भी मैंने पिछले क्लास में ही बताया था. देखो यहां पर बताया था V equals to IR. बताया था ना पिछले वीडियो में, जस्ट द लास्ट द प्रीवियस लेक्चर. तो हमें निकालना है ये R. तो R इज V अपॉन I. V हमें पता है 12, I हमें पता है 2. ओके, तो ये 2 6 12 यानी 6 ओम. रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है. आई होप यू पीपल हैव लर्नड इट. ओके, यूनिट वगैरह भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Calculate the potential difference across the ends of resistance of a wire of resistance 2 ohm. The resistance दिया हुआ है 2 ohm and when a current of 1.5 ampere passes through it. हमें निकालना है क्या है? Calculate the potential difference. Calculate का स्पेलिंग गलत है, तुम उसे करेक्ट कर लो. Calculate the potential difference, हमें V निकालना है. तो V equals to IR. ओम्स लॉ का यूज करेंगे. सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, कोई टेंशन नहीं लो. तो 3 आ तो गया, 1.5 इंटू 3, लेकिन यूनिट क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, तो 3 वोल्ट लिख दोगे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख लो कितना इजी, कितना सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ बैटरी ऑफ रेजिस्टेंस 7.5 ओम connected to a battery of potential difference 1.5 ohm. So हमें निकालना क्या है? करंट. कैलकुलेट द करंट. और क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है 7.5 ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 ओम. करंट का फॉर्मूला क्या है? V अपॉन आर. कौन सा फॉर्मूला? ये ओम्स लॉ है ना. V इक्वल्स टू आई आर है एक्चुअली. I को सब्जेक्ट बना दिया तो V अपॉन आर हो गया. V कितना है? 1.5 एंड R कितना है? 7.5. जो भी आएगा सॉल्व करके दैट विल बी आवर आंसर. सो 1.5 डिवाइडेड बाय 7.5 इज 0.2. तो हमारा करंट है 0.2 एम्पियर. एकदम सिंपल. Okay. Now this figure below shows two conductors A and B. तुम्हें दिख रहा है ना, दो कंडक्टर A and B. Their charges and potentials are given in the diagram. तो charge in A is -10 coulomb, charge in B is 5 coulomb. Potential at A is 5 volt and potential of B is 10 volt. तो clearly दिख रहा है कि lower potential कौन है? 5 volt is lower than 10 volt. तो A is at lower potential. A is at lower potential. वैल्यू ऑफ पोटेंशियल देखकर ही हम बता दिए. 10 वोल्ट बड़ा है तो B is at higher potential. तुम्हें याद होगा मैं कई बार इस चीज को बताया हूं प्रीवियस लेक्चर्स में. करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. तो पार्ट 1 में पूछ रहा है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा A टू B, लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स. करंट इसको ऑपोजिट फ्लो करता है, तो फ्लो ऑफ करंट होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर, मींस B टू A, इसका उल्टा. ओके, व्हेन बोथ ऑफ देम आर जॉइंड बाय कॉपर वायर. अब कुछ एमसीक्यूज है, बहुत ही सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट. द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सी बात है, वोल्ट होता है. बाय द वे लेट अस
ऑल्सो क्विकली रिकॉल कि ये सारे जो बाकी यूनिट्स है वो किस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट है। एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का। ओम किसका यूनिट होता है चिल्ड्रेन, बताओ, रेजिस्टेंस का। कूलम किसका यूनिट होता है चिल्ड्रेन, चार्ज का। ठीक है, तो वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। और इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, द करंट इन इट, रेजिस्टेंस को तुम इंक्रीज करोगे, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट को इंक्रीज करोगे, बाधा, रुकावट इंक्रीज कर दोगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, करंट विल डिक्रीज, isn't it? सिंपल सी बात है, करंट डिक्रीज हो जाएगा। करंट इन अ सर्किट फ्लोज, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, इन अ डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दिस इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, इन डायरेक्शन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जो कि गलत है, वो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है। सी में क्या लिखा हुआ है, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है करंट का डायरेक्शन, तो सी भी गलत है, इन एनी डायरेक्शन वो भी गलत है, तो ए हमारा होगा। फिर एमसीक्यू क्या है, अ सेल इज यूज्ड टू, सेल का काम क्या है, मेजर करंट इन अ सर्किट ना, ये काम कौन करता है, मेजर करंट एमीटर करता है, तुम्हें याद है एमीटर मेजर्स द करंट इन द सर्किट, तो ये काम तो सेल का नहीं है। प्रोवाइड करंट इन द सर्किट, जी हाँ, करंट को प्रोवाइड करता है सेल। लिमिट करंट इन अ सर्किट, जी नहीं, करंट को मतलब लिमिट मतलब कि वो फ्यूज का काम है कि हाँ इतना ही करंट जाएगा, इसके ज्यादा नहीं जाएगा करंट, तो फ्यूज आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में कि फ्यूज करंट को लिमिट करता है। ओके, अभी हमें नहीं पढ़ना है 9th में, तुमने लोअर क्लास 8 में पढ़े होगे कि फ्यूज मेल्ट हो जाता है, अगर हाई करंट फ्लो किया ना तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, करंट को वहीं पे रोक देता है, तो लिमिट करंट मतलब स्टॉप करता है करंट को कौन, फ्यूज। एंड प्रिवेंट करंट इन अ सर्किट, वो स्विच का काम होता है, करंट को ऑफ कर दिया। ओके, तो प्रोवाइड करंट ये काम सेल का है। द यूनिट ऑफ करंट इज ऑब्वियसली एम्पियर, क्योंकि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, ओम रेजिस्टेंस का होता है, कूलम्ब चार्ज का होता है। द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्वियसली कॉपर, तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, सिल्क इंसुलेटर है। ह्यूमन बॉडी, हमारा बॉडी कंडक्टर है, जानते हो ना, कंडक्टर है। एसिडुलेटेड वाटर, वाटर में अगर थोड़ा सा एसिड डाल दो तो बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है, एसिडेटेड वाटर। तो इंसुलेटर कौन हुआ हमारा, सिल्क इंसुलेटर हुआ। इसी के साथ आज का वीडियो, छोटा सा प्यारा सा वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारा ज्यादा पोर्शन नहीं बचा हुआ है करंट का, और तुमने बाकी सारे चैप्टर्स का वीडियो देखा है ना, हैव यू वॉच्ड द अदर लेक्चर, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड देन डेफिनेटली वॉच। मैंने मैग्नेटिज्म का एक पूरा चैप्टर का वन शॉट वीडियो अपलोड किया हुआ है, क्या तुमने उसको देखा है, देख लो अगर नहीं देखा है तो, ठीक है, मेरे चैनल पर ही है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।